Good morning, students. Welcome to English class. Today we are going to start our third chapter, A Hero by R.K. Narayan. This is a very beautiful story, very interesting story. And in this story, there are mainly five characters. First, Swami. Second, Swami's father. Third, Swami's mother. Fourth, Swami's granny. And fifth, a burglar. It's very beautiful story. So before this, let me tell you something about the poet, about the author R.K. Narayana. R.K. Narayan is one of the most famous and widely read Indian novelists. Who he was born on 10th October 1906 in Madras. Now it is called Chennai. He began his राइटिंग करियर की शुरुआत की उन्होंने विद स्वामी एंड फ्रेंड्स इन 1935. मोस्ट ऑफ हिज वर्क इज सेट इन द फिक्शनल मीन्स क्या होता है, इमेजिनेबल फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी, which captures everything Indian while having a unique means rare identity of its own. He told stories of ordinary means simple people trying to live their simple lives in a changing world. He told stories. R.K. Narayana told stories about the common people who are trying to live their simple life in the changing world. Means how they are surviving in this world, in changing world. So his style is shown by simplicity, elegance. Elegance means the art of representing good ideas, and subtle humor means easily to understand. Subtle means easily to understand. Among his best received of Narayana's 34 movies are The English Teacher, Waiting for the Mahatma, The Guide, The Man Enter of Malgudi, The Vendor of Sweets, and A Tiger for Malgudi. These are famous movies. The story of movies were taken from his novels. Narayana also wrote a number of short stories collections including Lally Rod, A Horse and Two Gods, and other stories, Under the Banyan Tree, and other stories, and The Grandmother's Tale in 1993. And R.K. Narayana passed away in 2001. So now we have get enough information about the Indian novelist R.K. Narayana. So now let us start the story. A hero. Pre-reading task. Work in groups of 4 or 5 and list the qualities that make a person a hero. And second one, courage means bravery is an attitude. Bravery एक attitude होता है, and it is there in the mind. Do you agree? जो courage होता है, it is always in our mind. So do you agree? Discuss with reasons.
So now read the story about a small boy Swami and find out how he becomes a hero suddenly. So now let us read the story about a small boy Swami. There is a main protagonist is Swami in this story, and how he becomes a hero suddenly. अचानक से वो suddenly randomly अचानक से हीरो कैसे बन जाता है. For Swami, events took an unexpected turn. Unexpected means foreseen, anticipated. Father looked over means above the newspaper he was reading under the hall lamp and said. फादर ने न्यूज़पेपर के ऊपर से झांक कर देखा तो न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे हॉल में बैठकर लैंप के नीचे लैंप की रोशनी में उसको पढ़ रहे थे एंड सैड स्वामी लिसन टू दिस न्यूज़ इस न्यूज़ को सुनो एंड एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी मीन्स करेज bravery of a village lad means boy who while returning home by the jungle path means way कि एक बच्चा जो जंगल रास्ते से वापस आ रहा था केम फेस टू फेस में इनकाउंटर विद अ टाइगर ये टाइगर से उसका सामना हो गया द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर एंड हिज फाइट अप अ ट्री एंड हिज फ्लाइट अप अ ट्री वो शेर से लड़ते हुए बाद में पेड़ पे चढ़ गया वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर जब तक कुछ गांव के लोग वहाँ पे आ नहीं गए और उन्होंने उस टाइगर को मार नहीं दिया वो पेड़ पर चढ़ गया वहीं पे पेड़ पे ही रहा आफ्टर रीडिंग इट थ्रू फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सडली मीन्स क्या होता है स्टेयर फादर ने उसकी ओर घूरते हुए कहा देखा और कहा व्हाट डू यू से टू दैट तुम क्या कहते हो इसके बारे में स्वामी सैड आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन नॉट एट ऑल अ बॉय उसने कहा स्वामी ने कि मुझे लगता है कि ये जो है ये कोई छोटा बच्चा नहीं था ये कोई बड़ा बच्चा था एंड हाउ कुड अ बॉय फाइट ए टाइगर एक बच्चा कैसे एक लड़का कैसे टाइगर से लड़ सकता है यू थिंक यू आर वाइजर इंटेलिजेंट यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर तुम्हें लगता है कि तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा बुद्धिमान हो इंटेलिजेंट हो जो इन्होंने लिखा वो गलत लिखा है फादर स्नीयर मीन्स क्या होता है स्पोक इन ए स्कॉर्नफुल मीन्स रिब्यूक स्कॉर्नफुल मैनर फादर डांटते हुए कहा उसको ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी ए कवर्ड whereas another may have the strength of a straw but if he has courage he can do anything फादर ने कहा कि मैन में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एक इंसान में एक हाथी जितनी ताकत हो सकती है एंड येट बी ए कावर्ड फिर भी वह कई बार डरपोक होता है वेर जबकि अनदर में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रा जबकि कईयों में सिर्फ ताकत एक तिनके जितनी होती है बट इफ़ ही हैज़ करेज अगर उसमें साहस हो कॉन्फिडेंस हो करेज मीन्स कॉन्फिडेंस ही कैन डू एनीथिंग वो कुछ भी कर सकता है सो करेज इज़ एवरीथिंग कॉन्फिडेंस इज़ एवरीथिंग स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ और एज ताकत और उम्र इम्पोर्टेंट नहीं होती जितना कि कॉन्फिडेंस इम्पोर्टेंट होता है Swami disputed the theory. How can it be? Dispute means he was not agree. वो सहमत नहीं था वो कहता how can it be कैसे हो सकता है father? Suppose I have all the courage. मेरे पास हर तरीके का साहस है. What can I do if a tiger should attack me? तो मैं क्या कर सकता हूँ अगर एक टाइगर मुझ पे अटैक कर दे और leave alone strength अकेली ताकत को छोड़कर कैन यू प्रूव यू हैव करेज तो फादर ने कहा अकेली ताकत को छोड़कर क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर साहस है लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम
तुम साबित कर दो अगर तुम आज रात मेरे ऑफिस के रूम में अकेले सो जाते हो तो। ए फ्राइटफुल ए फ्राइटफुल प्रोपोजिशन मीन्स प्रपोजल। प्रपोजिशन मीन्स क्या होता है? प्रपोजल। एक टेरिफिक, एक हॉरिबल प्रपोजल था ये। स्वामी थॉट ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड मीन्स अलोंग हिज ग्रैनी इन द पैसेज। वो सोचता है कि वो हमेशा अपनी दादी के साथ सोता था। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट kept him trembling, shivering, trouble. Little bit change in this arrangement कैन फॉल हिम इन ट्रबल एंड अवेक ऑल नाइट। अगर इस सिस्टम में कुछ चेंज होता है तो हो सकता है उसे सारा डर के रहना पड़े और सारा रात जागना पड़े। सो ही हॉप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वॉज ओनली जॉकिंग मीन्स किडिंग। पहले उसने उम्मीद की, स्वामी ने, कि शायद फादर मजाक कर रहे हैं। ही मम्बल्ड, स्पीक स्लोली, वीकली, वो धीरे धीरे बोलता है, येस, एंड ट्राइड टू चेंज द सब्जेक्ट। एंड स्वामी ट्राइड टू चेंज द सब्जेक्ट, वो बात को बदलने की कोशिश करता है। ही सैड वेरी लाउडली एंड विद ए ग्रेट डील ऑफ इंथुसियाज्म मीन्स झील, उत्साह के साथ बोलता है, वी आर गोइंग टू एडमिट एक्सेप्ट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हेयर आफ्टर। कि अब आज के बाद हम एल्डर्स को भी अपने क्रिकेट क्लब के अंदर शामिल करेंगे। एंड वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, और हम नए ब्रांड्स की जो बैट्स और बॉल्स को परचेज करने जा रहे हैं। और कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू, हमारे कैप्टन ने मुझे कहा है कि मैं आपको बता दूँ ये। वी विल सी अबाउट इट लेटर, फादर ने कहा कि हम इसके बारे में बाद में देखेंगे। फादर कट इन मीन्स डिस्टर्ब, इंटरप्ट, फादर ने उसकी बात को वहीं पे काट दिया। एंड यू मस्ट स्लीप अलोन हेयर आफ्टर, इसके बाद तुमने अकेले ही सोना है। स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, बियॉन्ड मीन्स आउट ऑफ, कि अब जो मैटर है वो उसके पहुंच से परे हो चुका है। फ्रॉम ए चैलेंज में डिफिकल्ट टास्क, इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड, एक्चुअली जो चैलेंज था इसके लिए कमांड बन चुका था, ऑर्डर बन चुका था। एंड ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी में फर्मनेस, स्ट्रॉन्गनेस एट सच मोमेंट्स। वो जानता था कि एक्चुअली हिज फादर विल नॉट make any kind of compromise. So from the first of next month I'll sleep alone. So from the first of next month, अगले महीने की स्टार्टिंग से मुझे अकेले सोना था, फादर ने उसे कहा। एंड नाउ यू मस्ट डू इट नाउ, तुम्हें भी करना चाहिए। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल मीन्स हेटफुल, स्लीपिंग बिसाइड्स ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी। फादर ने कहा ये बड़ा हेटफुल है, तुम इतने बड़े हो चुके हो, अभी तुम दादी के साथ, मम्मी के साथ सोते हो। सो यू आर इन द सेकेंड फॉर्म एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, मुझे ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं जिस तरीके से तुम बड़े होते जा रहे हो डे बाई डे। सो ही सैड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, अपनी वाइफ की ओर देखता है, हु वॉज रॉकिंग द क्रेडल। एंड एक्चुअली शी वॉज ऑलवेज टेकिंग द साइड ऑफ हर चाइल्ड। एंड वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, तुम, उसकी वाइफ कहती है कि तुम मेरी ओर क्यों देख रहे थे जब तुम स्वामी को कुछ बोल रहे थे। शी आस्क्ड एंड आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मुझे कुछ नहीं पता बच्चे के बारे में। नो नो आई डोंट मीन यू, मेरा मतलब तुम नहीं। फादर सैड, फादर ने कहा एक्चुअली ऐसा कुछ मतलब नहीं था मेरा। सो इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज़ स्पॉइलिंग, अगर तुम्हें लगता है कि आपकी मम्मी, आपकी माताजी से ख़राब कर रही हैं बच्चे को बाय गिविंग टू मच लव, टेल हर, सो उसे बोल दीजिए जाकर आप। एंड डोंट लुक एट मी, मेरी और डोंट लुक एट मी, डोंट स्टेयर एट मी, मुझे घूरने की ज़रूरत नहीं है। शी सैड एंड टर्न अवे, मूव अवे, ये कहकर वहाँ से वो चली गई। सो rest of the story we shall read it tomorrow. So students, you will find out some important and difficult words and underline these words and try to make effective use of your dictionary.
Till then, thanks and have a nice day.